Good evening, all. Good evening, all doctors. Welcome to this session today. Myself, Dr. Piyush Juneja, founder of IndianVadyas.com. I welcome all of you for this session on this lovely Sunday evening. So we have Dr. Rajesh Chabda with us. Dr. Rajesh Chabda is having around 30 years of experience now, and he is an expert, as all of us know, in Ayurveda. But few of us know that he is also an expert in insurance, mediclaim, and all these related aspects as well. And I think you are seeing a lovely picture of his center in Janakpuri, Shri Krishna Ayurveda Academy and Panchkarma Center. So Dr. Rajesh Chavda and Dr. Priti Chavda has started this recently, and it's a beautiful center. And I request all of you who are in Delhi NCR or near to Delhi NCR do visit this center. It's an ideal Panchkarma center and various other parasurgical processes like Agnikarm, Jaloka, and everything is there. So without wasting much time, and I think we have quite good number of doctors now. We are also recording this session, so we will be posting up on social media for those who are unable to join today. And I request all of you, let's first hear from Dr. Rajesh Chabda regarding this session. He has some slides to show us and to get us more awareness about this. And after the presentation, after the slides, we will be taking up all your questions. We will request all of you to post your queries and questions in the chat section, and we'll try to wrap up the entire thing in around 1 hour, 1 hour 15-20 minutes maximum. And it's a very very important session today because mediclaim, insurance, all these aspects in Ayurveda are not that much clarified till date. In fact, personally, I am also confused right till now that how to proceed further. Many of my patients comes to me. I have a small OPD clinic. So in OPD clinic context, what exactly is applicable, what is not. In a Panchkarma context, what is applicable, for example, a daycare Panchkarma center. And in hospitals, some of us know that NABS hospitals, they are providing cashless and all. But still, we are not that much clear. So that's why we requested Dr. Rajesh Chabda, and he very well accepted our invitation. He's one of the, I can say, most occupied Ayurveda doctor right now, but still he managed to have some time from his busy schedule, and we thank Dr. Rajesh Chavda for that. So, sir, over to you, and you can please start with your introduction and presentation today. Thank you, Dr. Rajesh Chavda, again for this session. Thank you, Dr. Piyush. Thank you for giving me such a lovely opportunity to interact with my colleagues during this lockdown period. I'll be just starting my slide presentation and followed by the question answer session we will be taking later on. To introduce myself, I am Dr. Rajesh Chabda. I did my bachelor in Ayurvedic medicine in 1990 from prestigious Delhi University, and after that I started my own practice in West Delhi. Nowadays I'm having my Panchkarma center, and I'm running this Panchkarma center as has been introduced by Dr. Piyush. My topic of today is insurance, mediclaim, and Ayurveda. So I'll be focusing on this topic, and इसमें मैं स्टार्ट करूंगा बेसिक से, क्योंकि इसमें हो सकता है जो अगस्त गैदरिंग इस वक्त है उसमें कुछ डॉक्टर्स ऐसे भी हो सकते हैं जिनको सब कुछ पता हो, और कुछ डॉक्टर्स मेरे फ्रेंड्स ऐसे भी हो सकते हैं इसमें जिनको कुछ भी आइडिया अभी ना हो कि इंश्योरेंस कैसे होती है और इंश्योरेंस के क्या क्या टर्म्स एंड कंडीशंस हैं, क्या उसके बेसिक वर्ड्स हैं, और कैसे क्लेम लॉन्च किया जाता है, कैसे क्लेम रियम्बर्स होता है, और इन कंटेक्स्ट विद आयुष क्या रिसेंट गाइडलाइंस हैं, उन सबको मैं थोड़ा सा आपके सामने रखना चाहूंगा। इंश्योरेंस, सबसे पहले हमें समझना है कि इंश्योरेंस होता क्या चीज है। इंश्योरेंस कुछ नहीं है, सिर्फ एक रिस्क मैनेजमेंट है। हमारी जो लाइफ है वो बड़ी अनसर्टेनिटी के साथ भरी हुई है, रिस्क हमारे साथ इन्वॉल्व है, और इस रिस्क मैनेजमेंट के तहत एक अरेंजमेंट किया जाता है जहां की बहुत सारे लोग अपना थोड़ा थोड़ा कंट्रीब्यूशन देते हैं, वो पूल इन होता है एक जगह पे, और उसके बाद जिस किसी के साथ अनइवेंचुअलिटी होती है या जिसके साथ लॉस होते हैं या जिसके साथ
कोई बीमारी होती है या किसी घर में कोई मृत्यु वगैरह हो जाती है तो उसको उसमें से एज पर टर्म्स एंड कंडीशंस पैसा दिया जाता है। ये इंश्योरेंस दो किस्म की होती हैं, लाइफ इंश्योरेंस एंड जनरल इंश्योरेंस। लाइफ इंश्योरेंस जो है लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया डील करता है, और जनरल इंश्योरेंस जो है वो जीआईसी डील करती है, जनरल इंश्योरेंस कंपनी ऑफ इंडिया। अब इस जनरल इंश्योरेंस कंपनी में भी कई कंपोनेंट्स आते हैं, जैसे हाउस होल्ड, हेल्थ, हेल्थ से रिलेटेड मेडिक्लेम, मोटर, मिसलेनियस में फायर, मैरीन वगैरह हो जाता है, जो कि हमारा टॉपिक नहीं है आज का। हमारा टॉपिक सिर्फ हेल्थ से रिलेटेड है, और हेल्थ से रिलेटेड हमें क्या क्या पॉलिसीज लेनी चाहिए और क्या क्या पॉलिसी के साथ पेशेंट हमारे पास क्लिनिक में आ सकता है और हमें कैसे जो है उस वक्त अपना काम करना है, वो मैं थोड़ा बताऊंगा। इसकी इंपॉर्टेंस क्या है, जैसे मैंने आपको बताया लाइफ इज फुल ऑफ अनसर्टेनिटी, सो प्रोटेक्शन हमें चाहिए, और कोई ऐसी चीज होनी चाहिए जो हमारे लॉसेस को शेयर कर सके। और इस ये जो शेयर है ये किसी भी तरह से हो सकता है, ये फाइनेंशियल सपोर्ट भी हो सकता है, ये फाइनेंशियल सपोर्ट के साथ साथ जो है हमें लॉस को भी है, पीस ऑफ माइंड को भी देने वाला होना चाहिए। और इसके कंपोनेंट में जो है कई बार हम जो है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से भी एनरोल करते हैं, जो कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया जॉब में होते हैं, उनको सीजीएचएस, ईएसआईसी, डीजीएचएस बेनिफिट मिलते हैं। इसका बेनिफिट हमें इनकम टैक्स में भी मिलता है अंडर सेक्शन 80D ऑफ इनकम टैक्स एक्ट। और इससे जब इतना सब कुछ होता है और हमारे साथ कोई अनइवेंचुअलिटी में इतना सब कुछ मॉरल सपोर्ट मिलता है इनसे, तो हमें एक कॉन्फिडेंस आता है। इस कॉन्फिडेंस से हमारी ग्रोथ होती है, अल्टीमेटली पीस ऑफ माइंड होगा। कुछ वर्ड्स इसमें ऐसे इंश्योरेंस होते हैं जो कि मैं आपको बताना चाहूंगा कि इंश्योरेंस कंपनी से रिलेटेड जो आपको वर्ड्स कॉमन लिखने को मिल सकते हैं वो सब आपको पता होना चाहिए। जैसे सबसे पहले व्हाट इज इंश्योरेंस कंपनी। एक इंश्योरेंस कंपनी एक एंटिटी है which provides insurance to and is called as insurer also. It is also called as insurance carrier or underwriters. Insurance issued by itself a guarantee कि जब कभी भी कोई अनइवेंचुअलिटी होगी तो वो एक आपको गारंटी देती है कि आपके लॉस को वो बियर करेगी। हमारे इंडिया के अंदर जो मोस्ट इंपॉर्टेंट इंश्योरेंस कंपनी है उसमें ओरिएंटल इंश्योरेंस कंपनी, न्यू इंडिया इंश्योरेंस कंपनी, न्यू इंडिया नेशनल इंश्योरेंस कंपनी, यूनाइटेड इंडिया, बजाज एलियंस, टाटा एआईजी, एचडीएफसी एर्गो, यूनिवर्सल सैम्पो, स्टार हेल्थ केयर, रेलिगेयर, रिलायंस एटसेट्रा, टू नेम सम ऑफ देम। इसके अलावा भी बहुत सारी इंश्योरेंस कंपनी है प्राइवेट सेक्टर्स में। जो पहली चार मैंने बताई वो पब्लिक सेक्टर इंश्योरेंस कंपनी है और बाकी की प्राइवेट है। आजकल प्राइवेट बहुत पार्ट प्ले कर रही है और बहुत सारे प्रोडक्ट्स इसके भी मेडिक्लेम से रिलेटेड है। इंश्योर्ड किसको कहता है, जिसकी इंश्योरेंस हम करते हैं उसको हम इंश्योर्ड कहते हैं। और ये इंश्योर्ड दो किस्म के होते हैं, या तो इंडिविजुअल इंश्योर्ड होगा या जनरल होगा। एक बहुत सारा बड़ा ग्रुप जो है जिसमें मिनिमम 100 बंदे से लेकर के 1000, 5000, 10,000 तक भी बंदे अगर ग्रुप बना करके इंश्योरेंस लेते हैं तो हम उसको जो है ग्रुप मेडिक्लेम, और अगर वो इंडिविजुअल लेता है तो हम उसको इंडिविजुअल मेडिक्लेम में कवर करते हैं। पॉलिसी क्या होती है? पॉलिसी मीन्स which policy you want to buy. It can be health, as I told you earlier, motor, miscellaneous. So हमारा यहाँ पे टॉपिक जो है वो हेल्थ से रिलेटेड है। अब ये मेडिक्लेम पॉलिसी जो है मैंने आपको पहले बताया कि इट कैन बी इंडिविजुअल मेडिक्लेम पॉलिसी, इट कैन बी फ्लोटर, इट कैन बी ग्रुप मेडिक्लेम, डिपेंडिंग अपॉन व्हाट यू वांट टू परचेज, यू हैव टू परचेज। सी मेरा ये टॉपिक जो है ये दोनों के लिए है। जनरल आप अगर पॉलिसी लेना चाहते हैं उनके लिए भी है, अगर आपका एक सेटअप है और आपके पास आप चाहते हैं कि टीपीएस एनरोल होकर के कैशलेस फैसिलिटी अपने पेशेंट्स को प्रोवाइड करना चाहते हो तो उसके लिए भी है। सो मैं इस पॉइंट से कवर कर रहा हूँ कि आपको सब कुछ पता होना चाहिए। और प्रोफेशनल इंडेमनिटी इंश्योरेंस जो हम पे एप्लीकेबल होता है, इस पॉलिसी में जो जनरल हमारे पर एप्लीकेबल होती है उसका मैंने इसमें नाम लिया है। फर्स्ट इज द मेडिक्लेम पॉलिसी, प्रोफेशनल इंडेमनिटी इंश्योरेंस, ओवरसीज मेडिक्लेम पॉलिसी। अगर हम लोग कभी अपनी प्रोफेशनल नॉलेज को एनहेंस करने के लिए बाहर की कंट्री में कहीं ट्रिप करते हैं तो हमें ओवरसीज मेडिक्लेम पॉलिसी लेके जाना चाहिए। हम हर रोज बाहर आते हैं और लाइफ अनसर्टेन है, पहले मैं बता चुका हूँ, एक्सीडेंट होने का खतरा है, तो उसमें जो है अपने लॉसेस को जो है मिनिमाइज करने के लिए पर्सनल एक्सीडेंट पॉलिसी लेनी चाहिए। हमारे सेंटर में कोई फायर, बर्गलरी या ब्रेकडाउन ना हो तो उसके लिए जो है हमारे पास फायर, बर्गलरी एंड ब्रेकडाउन पॉलिसी भी होनी चाहिए। ब्रेकडाउन से मतलब होता है कि आपके यहाँ पे जो इक्विपमेंट्स हैं जो आप अपने सेंटर्स पे यूज कर रहे हैं, अगर उनका कोई ब्रेकडाउन होता है तो उसके लॉस को इंश्योरेंस कंपनी
भरपाई करती है। जैसे आपके पास ईसीजी मशीन है, या आपके पास कोई पंचकर्मा से रिलेटेड इक्विपमेंट है, या आपके पास ओटी के अंदर एपरेटसेस हैं, तो वो सब उसमें कवर होते हैं। तो ये आपके पास इन पॉलिसीज को होना चाहिए, ये मिनिमम है आपके पास। सम इंश्योर्ड क्या है? सम इंश्योर्ड वो इंश्योर्ड अमाउंट है जो कि आप लेते हैं, और कितने की मिनिमम आपने इंश्योरेंस करानी है। ये इंश्योरेंस अमाउंट जो है कुछ भी हो सकता है, 1 लाख, 2 लाख, 3 लाख, 10 लाख, 15 लाख, 20 लाख, डिपेंडिंग अपॉन कि आपकी कितनी नीड है, आपके यहाँ आपका सेटअप कैसा है, आपके यहाँ कितना आपको लॉसेस को बियर करना है। अगर हो जाता है तो बियर करने की हिम्मत होनी चाहिए। तो इसके लिए जो है आपको ये पॉलिसीज लेनी है। प्रपोजल फॉर्म क्या है? किसी भी पॉलिसी को लेने से पहले हमें एक प्रपोजल फॉर्म भरना होता है। इसमें बायोडाटा आपको अपना देना है, इसमें डिटेल क्वेश्चनर्स होते हैं, आपकी प्रीवियस हिस्ट्री को जानने की कोशिश की जाती है कि आप प्रीवियसली कोई हाइपरटेंशन, डायबिटिक या आपको कोई और प्रॉब्लम तो नहीं है। और लास्ट में एक परफॉर्मा होता है जो कि आपके फैमिली डॉक्टर द्वारा साइन किया होना चाहिए। ये प्रपोजल फॉर्म बड़े ध्यान से भरना चाहिए, बिकॉज यही एक बेस होता है एक कॉन्ट्रैक्ट का आपके और इंश्योरेंस कंपनी के बीच में। कल को अगर कोई क्लेम आता है तो प्रपोजल फॉर्म विल बी द बेसिस फॉर द सेटलमेंट ऑफ द क्लेम। सो इसको प्रपोजल फॉर्म को भरने से पहले आप किसी की गाइडेंस या आप वो आपकी इंफॉर्मेशन जो आपकी ट्रुथ है वो आपने देनी है। आपको किसी किस्म का कोई कंसील नहीं करना है। इस पॉलिसी को लेने से पहले आपको कुछ चेकअप भी कराने पड़ेंगे, और वो चेकअप में जो है आपको फिजिकल एग्जामिनेशन करवाना है अपने डॉक्टर से। आपको ब्लड शुगर की रिपोर्ट की हो सकता है जरूरत पड़े, लिपिड प्रोफाइल, क्रेटिनाइन, यूरिन एनालिसिस, ईसीजी, स्ट्रेस टेस्ट, आई चेकअप विच इंक्लूड्स फंडोस्कोपी एंड रेटिनोस्कोपी एंड सो ऑन। किसी कंपनी में ये टेस्ट होंगे, किसी में हो सकता है इसके अलावा कुछ कुछ और टेस्ट की रिक्वायरमेंट भी हो जाती है। किसी कंपनी में हो सकता है आपको ग्लाइकोसिलेटेड हीमोग्लोबिन की भी डिमांड हो, किसी कंपनी में हो सकता है आपको कहें कि अल्ट्रासाउंड की भी रिपोर्ट आप अपने साथ इसके साथ अटैच करें। ये पॉलिसी आपको जो है 1 साल के लिए दी जाती है, और वो 1 साल मतलब 365 दिन का होता है। और अब ये 1 साल के बाद 1 साल से बढ़ा करके अब आजकल 2 साल की, 3 साल की भी पॉलिसी इकट्ठे आपको इशू हो सकती है। ये कुछ टर्म्स एंड कंडीशंस पे इशू होगी आपको, और वो टर्म्स एंड कंडीशंस में आपका जो है कुछ इंक्लूजन क्लॉज होते हैं उनके, कुछ एक्सक्लूजन क्लॉज होते हैं, और उनके क्राइटेरिया ले डाउन होते हैं कि क्या क्राइटेरिया होंगे आपके क्लेम को एडमिसिबल करने के लिए। पॉलिसी कवर्स जो होते हैं वो आपकी हॉस्पिटलाइजेशन फेज के लिए होता है, किसी किस्म की आपकी ओपीडी के एक्सपेंसेस के लिए नहीं होता है। सो प्री हॉस्पिटलाइजेशन आपको 30 दिन का जितना भी क्लेम होगा फ्रॉम द डेट ऑफ एडमिशन आपको पेएबल होगा। आपको पोस्ट हॉस्पिटलाइजेशन फेज में 60 दिन का जो है पेएबल होगा, जो भी आप अमाउंट एक्सपेंड करेंगे जिस बीमारी के लिए आप एडमिट हुए हैं उसी से रिलेटेड फ्रॉम द डेट ऑफ डिस्चार्ज। और ड्यूरिंग द फेज ऑफ हॉस्पिटलाइजेशन आपको रूम रेंट, कंसल्टेंट चार्ज, सर्जन चार्ज, असिस्टेंट, एनेस्थेटिस्ट फीस, ये सब कुछ जो है मिलता है। पैथोलॉजिकल इन्वेस्टिगेशंस जो रिलेवेंट है उस डिजीज से रिलेटेड, मेडिसिनल चार्जेस जो उस डिजीज से रिलेटेड मेडिसिन है, डिस्पोजेबल चार्जेस, ऑपरेशन थिएटर अगर यूज हुआ है तो वो, और अगर किसी केस में ट्रांसप्लांट हुआ है तो डोनर से रिलेटेड जो आपका एक्सपेंसेस होगा वो सब भी पेबल होता है। इसके अलावा एम्बुलेंस के चार्जेस भी पेबल होते हैं। पॉलिसी में कुछ कवरेज है, कुछ नहीं है। जैसे मैंने आपको बताया, इसमें एक वेटिंग पीरियड होता है 30 दिन का, जिस दिन से आप पॉलिसी लेते हैं। 30 दिन के बाद एक्चुअल में आपकी पॉलिसी स्टार्ट होती है, बट इसमें एक एक्सेप्शन है कि अगर कोई एक्सीडेंटल इंजरी होती है वो डे 1 से कवर होगी आपकी। और इसके अलावा कुछ एक्सक्लूजन क्लॉज हैं, वो एक्सक्लूजन क्लॉज मैं आपको अभी बताता हूँ। एक्सक्लूजन क्लॉज में कई क्लॉज हैं जैसे 4.1, 4.2, 4.3 एंड सो ऑन 4.33 तक क्लॉजेज हैं। और उस क्लासेस में जो जो डिजीज आपकी आती हैं वो नॉट पेएबल होती हैं एज पर द टर्म्स एंड कंडीशंस ऑफ द इंश्योरेंस कंपनी। जितनी भी पुरानी बीमारी हैं, जिस जिससे आप पॉलिसी लेते हैं उससे पहले की जो बीमारी होगी वो आपकी कवर नहीं होगी। जैसे कि हाइपरटेंशन, डायबिटीज, ऑस्टियोआर्थराइटिस, प्रोस्टेट, कैटरैक्ट, वो आपकी कवर नहीं होगी। या कवर होंगी तो आपको 2 साल का वेटिंग पीरियड या 1 साल का वेटिंग पीरियड या 4 साल का वेटिंग पीरियड होता है। कितना टाइम किस किस डिजीज के लिए होता है वो मैं आगे आने स्लाइड आगे आपको बताता हूँ। 1 साल का जो है वेटिंग पीरियड होता है एज पर 4.3 क्लॉज जो होता है बिनाइन ईएनटी डिसऑर्डर्स के लिए। अगर किसी को टॉन्सिलाइटिस है, टॉन्सिलेक्टमी करनी है, टॉन्सिल एडेनोइडेक्टमी होती है,
मैस्टोडेक्टमी करानी है, टिम्पेनोप्लास्टी है, तो उसके लिए 1 साल का वेटिंग पीरियड है जिस दिन से आपने पॉलिसी किया। ये नहीं कि आपने आज पॉलिसी ली, आपको जी मैं 1 महीने के बाद एडमिट हुआ और सारे मैं टेस्ट भी करा लूँ, सारे इन्वेस्टिगेशन भी हो जाए और मेरा जो है मैनेजमेंट भी हो जाए, सो दैट्स नॉट पॉसिबल। सो ड्यूरिंग द फर्स्ट ईयर ऑफ द पॉलिसी दिस डिसऑर्डर्स आर नॉट कवर्ड। 4.3 में ही आगे चलते हैं, तो 4.3 में ही आगे है कि 2 years वेटिंग पीरियड है फॉर कैटरेक्ट, benign hypertrophy of the prostate gland, hernia, hydrocele, piles, fissure, fistula, pilonidal sinus, sinusitis, PCOD, non-infective arthritis, gout, rheumatism and so on. So इसमें the point to be noted कि हमारे most of the centers, हमारे friends के colleagues के जो है वो anorectal surgery के हैं, तो they have to keep it mind कि 2 years का उसमें waiting period है, 2 years तक जो है anorectal disorders are not payable. जितने भी स्टोन से रिलेटेड डिसऑर्डर्स हैं, लाइक रीनल स्टोन्स हैं, यूरेट्रिक कैलकुलस है, ब्लैडर कैलकुलस है, गॉल स्टोन्स वगैरह हैं, उसके लिए भी 2 years का वेटिंग पीरियड है। 4 years का वेटिंग पीरियड है अगर कोई सफर कर रहा है ऑस्टियोआर्थराइटिस के साथ, या किसी को ऑस्टियोपोरोसिस है, या किसी को अनटिल अनलेस कि ये जो प्रॉब्लम है ऑस्टियोआर्थराइटिस की अगर किसी की एक्सीडेंट से हुई है तो वो फ्रॉम जिस वक्त हुई है उसी वक्त कवरेज होगी। अदरवाइज डीजेनरेटिव डिसऑर्डर्स में अगर ऑस्टियोआर्थराइटिस आ रहा है तो वो 4 years के बाद ही कवर होगा। इसमें एक और मैं पॉइंट बताना चाहूंगा, अगर किसी को प्री एग्जिस्टिंग डिसऑर्डर है भी और 4 years उसके निकल जाते हैं, 4 years तक वो कोई क्लेम नहीं लेता है, तो 4 year ऑनवर्ड जो है उसके सारे क्लेम पेएबल होते हैं। HIV is not payable, not at all payable. General debility, congenital external anomaly like cleft lip, cleft palates वगैरह जो हमें बाहर से दिखते हैं congenital anomaly, that are not payable. Sterility, infertility, pregnancy, refractive error like most आजकल क्या है LASIK surgery कराते हैं to correct the myopic, so that is not covered. Obesity related bariatric surgery is not covered. Psychiatric disorders, self inflicted injury, या किसी ने सुसाइडल अटेम्प्ट किया हो, उस सुसाइडल अटेम्प्ट के कारण उसको कोई बॉडीली इंजरीज हुई है, तो दैट आर नॉट कवर्ड। किसी किस्म का जेनेटिक डिसऑर्डर्स है, स्टेम सेल सर्जरी है, दैट इज नॉट कवर्ड। सर्कमसिजन if done for the religious purpose is not covered, but yes paraphimosis है, for paraphimosis circumcision करना है, that is covered. Vaccination is not covered. Cosmetic surgery is not covered, like most of the Bollywood actors are nowadays going for Bollywood cosmetic surgery, that is not covered. Plastic surgery for gynecomastia वगैरह is not covered. Sex conversion, hormonal replacement therapy is not covered. Now 4.15 is related to us. Massages, spa treatment, steam bath, Shirodhara, Udvartanam, Abhyangam, Kaya Sek, and other similar treatment are not covered. In fact, naturopathy treatment of any sort is not covered. Dental treatment, treatment for the vitamins, tonics, and OPD related expenses are not payable. Hospitalization for the purposes of diagnosis and evaluation is not payable. कुछ लोग कहते हैं कि सिर्फ हमारे को हॉस्पिटल में एडमिट कर दो और हमारे सारे टेस्ट करा दो जी। अगर कोई पेशेंट ऐसे एडमिट होता है और उसका आप हॉस्पिटलाइजेशन करते हो, सारे डायग्नोसिस वगैरह करते हो, सारे इन्वेस्टिगेशन कराते हो और अल्टीमेटली कुछ भी डिसऑर्डर नहीं निकलता है और आप उसको डिस्चार्ज करके भेज देते हो, वो सारे क्लेम डॉक्यूमेंट्स लेकर के पहुंचते हैं इंश्योरेंस कंपनी में, तो दैट इज नॉट पेबल। Treatment for the rundown condition or for the convalescent home, nature clinic, as I told you, naturopathy treatment is not payable. Cases, anything which is related to substance use, like if somebody is used to having any, and for that he has become abused, is not payable. Anything related to ethanol is not payable. So that is not payable. Anything, if you are willfully staying your patient in a hospital for which that duration is not recommended or not advisable is also not payable. Suppose कर लो आपने एक patient लैब कोलीगा किया और अपने हॉस्पिटल के अंदर रखा और उसको आप बियॉन्ड दैट पीरियड जो उसके लिए स्टिपुलेटेड होना चाहिए, लाइक एक दिन पेशेंट एडमिट होता है, सर्जरी होती है, सेकेंड डे डिस्चार्ज होता है, अगर आपने उस तो वो भी आपको पेबल नहीं होगा, उस दिन का नहीं होगा। ऑब्वियसली कॉलेसिस्टेक्टमी हुआ है तो ठीक है, कॉलेसिस्टेक्टमी का पार्ट पेबल होगा, बट बियॉन्ड रीजनेबल पीरियड ऑफ टाइम अगर आपने हॉस्पिटलाइज किया है तो उतने दिन का रिलेटेड रूम रेंट, नर्सिंग केयर, आरएमओ चार्जेस आर नॉट पेबल, so that you have to keep in mind.
Anything expenses related to the spectacles, contact lenses, cochlear implant, hearing aid is not payable. And कई बार जो है डिस्चार्ज के टाइम में डॉक्टर्स रिकमेंड करता है कि यू हैव टू परचेज दिस फॉर योर कंटिन्यूअस मॉनिटरिंग. लाइक for diabetic patient, you advise your patient to have a glucometer at their home, and they should go for self monitoring of the blood glucose. So if at all, if that patient is buying that glucometer and glucose sticks and produces that bill to the insurance company, that's not payable. In the similar manner, thermometer, CPAP machine, CAPD machines, infusion pump, nebulizers, walker, crutches, belts, sphygmomanometer are not payable. Expenses are not payable if it is only and only related to the diagnosis. Are not expenses not related to diagnosis. Suppose if you are admitted for the management of laparoscopic cholecystectomy and if you want कि हाँ मेरा तो MRI हेड भी हो जाए, डॉक्टर साहब करा दो, मेरी तो पॉलिसी है, कुछ नहीं जाता, तो वो MRI हेड आपने करा तो दिया, बट उस पेशेंट को वो पैसा नहीं मिलने वाला बिल्कुल भी. आइटम्स ऑफ पर्सनल कंफर्ट, लाइक अगर कुछ यूज करते हैं इन द रूम, लाइक टेलीफोन, टेलीविजन, आया सर्विसेज ले ली किसी पेशेंट ने, बार्बर, ब्यूटी सर्विसेज, बेबी फूड, बिकॉज यू नो आजकल फैशन है, ट्रेंड है कि टू गिव मैक्सिमम सर्विसेज टू योर पेशेंट. सो इन ऑर्डर आप ये सब सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं, तो इनके हेड में जो भी आपका एक्सपेंसेस होगा और वो आपके बिल में रिफ्लेक्ट होगा तो वो उनको नहीं पे होगा. सर्विसेज चार्ज, रजिस्ट्रेशन चार्जेस, कुछ नर्सिंग होम रजिस्ट्रेशन फीस रख लेते हैं कि मान लो 300 रुपए, 500 रुपए जो है हमारा मिसलेनियस एक्सपेंसेस हुआ, हमने रजिस्ट्रेशन के लिए रखा, तो दैट इज आल्सो नॉट पेबल. एनी होम विजिट चार्जेस आर आल्सो नॉट पेबल. अगर आप कोई पेशेंट कहता है जी माय पेशेंट इज इमोबाइल, they are non-ambulatory and please come and visit to our home, we will pay you whatever you will demand. Obviously you will demand and he will get, he won't get that because आप जब बिल पे करेंगे, आपकी फीस है 500 रुपए, होम विजिट में ऑब्वियसली आप जाएंगे 2000 या 3000 का बिल देंगे, तो 2000 पे उनको नहीं देने वाली इंश्योरेंस कंपनी, माइंड इट. और फिर बाद में वो प्रॉब्लम ना करे, बाद में किसी तरह के हो गई जी डॉक्टर साहब ये तो मुझे मिला नहीं, इसको एडजस्टमेंट कराओ, तो वो आपने नहीं करना है. देन रिस्की एवोकेशंस, कई लोग जो है अपना बाहर घूमने फिरने जाते हैं, वहां जाकर के स्कूबा डाइविंग करते हैं, मोटर रेसिंग करते हैं, लाइक इन गोवा, पैरासेलिंग किया आपने, पैराग्लाइडिंग किया, पैराशूट किया, तो वो जो आप ये करते हैं और इस प्रोसीजर में अगर आपको कोई बॉडीली इंजरी होती है, सो उसका क्लेम अगर आप किसी इंश्योरेंस कंपनी से लेने जाओगे तो नहीं मिलेगा. एनी क्लेम विच इज रिलेटेड टू ब्रीच ऑफ लॉ, जो हमारा लॉ ऑफ लैंड है, अगर हम उसका कहीं कोई ब्रीच करते हैं, उसके रिलेटेड अगर कोई इंजरीज होती हैं या कोई उससे रिलेटेड क्लेम आता है, तो वो भी पेएबल नहीं है. वॉर रिलेटेड इंजरीज एंड रेडियोएक्टिविटी बाय द न्यूक्लियर वेपन्स. सो दिस इज ए ह्यूज लिस्ट, 4.33 तक है, 4.1 स्टार्ट करते 4.1 से. सो दिस ऑल यू शुड अंडरस्टैंड. एंड किसी तरह के ऐसे क्लेम्स कई बार आपको आए तो आप देख लेना, पेशेंट को आप एडवाइस कीजिए कि दिस टाइप ऑफ क्लेम्स आर नॉट पेएबल. Now, since we are all, you know, Ayush practitioners here, so our main focus here should be for the management of what we are doing in our own practice. And since most of my friends who are now at this class session is from the Ayush, said they certainly want to know what type of claim are admissible for Ayush practitioners. So इससे पहले कि मैं स्टार्ट करूं, देखिए हमारे पास दो कैटेगरी के हॉस्पिटल, दो तरह के सेटअप्स होते हैं, या तो हमारे पास हॉस्पिटल होगा या आयुष डे केयर सेंटर होगा. फॉरगेट अबाउट द एलोपैथी पार्ट. अब तक एलोपैथी के अंदर जो होता था, वहां पे एक हॉस्पिटल की डेफिनेशन ये होती थी कि अगर आपका हॉस्पिटल 15 बेडेड है, वहां पे राउंड द क्लॉक एक RMO फैसिलिटी है, should be owned by a proper doctor, qualified doctor who should be registered with the state council, and वहाँ पे nursing care, RMO facility and ward boy and plus rooms and OT, ये facility अगर किसी पास हो तो वो claim जो है उनका admissible होता था. एक क्राइटेरिया एलोपैथिक सेक्शन में ये था. दूसरा क्राइटेरिया वहाँ पे ये है कि या तो आपके पास 15 बेडेड हो या आपका नर्सिंग होम शुड बी रजिस्टर्ड विद द स्टेट अथॉरिटीज.
एंड जो स्टेट अथॉरिटीज हम पे एप्लीकेबल होती है वो डायरेक्टरेट ऑफ हेल्थ सर्विसेज है। हमें किसी भी तरह के क्लेम को लेने के लिए डायरेक्टरेट ऑफ हेल्थ सर्विसेज से पहले एम्पैनल्ड होना पड़ता है। वो एम्पैनलमेंट लेटर जो है आपका जो है काम आता है आपके ऐसे पेशेंट को हैंड ओवर करने के लिए ताकि वो क्लेम इंश्योरेंस कंपनी से ले सके। बट डायरेक्टरेट ऑफ हेल्थ सर्विसेज से भी आपको अगर एम्पैनल होना है तो वहां पे भी आपकी कुछ फॉर्मेलिटीज है, लाइक यू हैव टू शो योर स्ट्रेंथ कि आपके डॉक्टर्स कितने हैं वहां पे, एंड आपका जो है आपके पास बायोमेडिकल वेस्ट का फैसिलिटी है, आपके पास जो है पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड से क्लियरेंस है। सो ये सारी फैसिलिटीज अगर आपके पास होगी तो आपको वहां पे दिल्ली गवर्नमेंट या दिल्ली डायरेक्टरेट ऑफ हेल्थ सर्विसेज से आपको एम्पैनलमेंट लेटर मिलता है या रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट मिलता है, उसको रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट भी बोलते हैं। सो वो रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट आप हैंड ओवर करते हैं। बट इन केस ऑफ आयुष हॉस्पिटल अर्लियर देयर वर नो गाइडलाइंस, या जो थी गाइडलाइंस वो बड़ी नॉन स्पेसिफिक थी। So in the absence of that, what we Ayush practitioners were doing that days कि जो है हम भी एक सर्टिफिकेट दे देते थे कि भी 15 बेडेड हमारे पास भी है, हमारे पास भी राउंड द क्लॉक आरएमओ फैसिलिटी है, वी हैव सफिशिएंट स्टाफ विद अस, जिसमें नर्सिंग केयर करने के लिए वार्ड बॉय आया है, ये सब फैसिलिटीज होती थी। सो ऑन द बेसिस ऑफ दैट चलता था। और दूसरा ये होता था कि एक लेटर जो है हम, मुझे याद है मैं क्योंकि पिछले 20 साल से इंश्योरेंस कंपनी के पैनल पे हूँ, सो तिबिया कॉलेज के अंदर एक डायरेक्टरेट होते थे, डायरेक्टरेट से वहां से एक लेटर्स जो है बहुत सारे आयुष के सेंटर लेके आते थे कि सिंस वी डोंट हैव एनी फैसिलिटी टू रजिस्टर हियर इन द, जो वैलिड होता था हमारे पास लाने के लिए और हम उनके बेसिस पे क्लेम सेटल करते थे। सो बट नाउ इट इज सिंस पास्ट 4 or 5 years, 2 मीटिंग्स में तो मैं भी गया था, तो मुझे काफी कुछ इसमें पता चला था कि क्या क्या हो रहा है, कैसे कर रहे हैं ये लोग। तो काफी कुछ मुझे अच्छा लगा और पॉजिटिव मैं तभी से था कि भाई जिस हिसाब से जिस तरीके से काम शुरू हो गया, एक दिन हमारे पास एम्पैनलमेंट जरूर होंगे और हमारे हॉस्पिटल को भी बहुत अच्छी एक रिकॉग्निशन मिलेगी। सो उसका क्या बेनिफिट हुआ कि मिनिस्ट्री ऑफ आयुष वाज इन कांटेक्ट विद IRDA। IRDA इज इंश्योरेंस रेगुलेटरी डेवलपमेंट अथॉरिटी थ्रू मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस। और उनकी जब मीटिंग हुई तो उसमें फिर आयुष हॉस्पिटल को भी एम्पैनलमेंट करने का जो है उनका एक मीटिंग में मेमोरेंडम साइन हुआ, तो वो एक बेस बना, उसके बेसिस पे एक लेटर इशू हुई है IRDA से। एंड IRDA की जो गाइडलाइंस होती है वो दैट हैज टू बी फॉलोड बाय ईच एंड एवरी इंश्योरेंस कंपनी। ये अलग हो सकता है कि जो इंश्योरेंस कंपनी है वो अपने प्रोडक्ट में कुछ प्लस माइनस करके प्रोडक्ट को दे, हो सकता है कोई हमारे को कवरेज जो है 25,000 की करे, हो सकता है कोई 50,000 की करे, और कोई ये भी हो सकता है कि कहे कि नहीं आपका तो पूरा का पूरा सम इंश्योर्ड भी आपके ऊपर एप्लीकेबल है कि अगर आपका कोई पेशेंट आता है जितने की सम इंश्योर्ड उस पेशेंट के पास होगा और वो हमारे आपसे आयुष का ट्रीटमेंट लेता है और आप बिल देते हैं तो आपका रियम्बर्स होगा। सो आयुष हॉस्पिटल और आयुष डे केयर सेंटर ये दो एंटिटी अब सामने आई हैं, और आयुष हॉस्पिटल और आयुष डे केयर सेंटर की डेफिनेशन क्या है ये मैं आपको बताऊंगा। आयुष हॉस्पिटल जो है वो एक ऐसा हेल्थ केयर सेंटर है जहां पर कि आपके पास मेडिसिन से रिलेटेड केसेस आ सकते हैं, सर्जरी से केसेस रिलेटेड केसेस होंगे, पैरा सर्जिकल प्रोसीजर से रिलेटेड केसेस होंगे, और ये जो है सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट रन हॉस्पिटल्स होंगे और रन हॉस्पिटल होंगे। या अगर सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट हॉस्पिटल नहीं है तो ये कोई टीचिंग इंस्टीट्यूशन होना चाहिए जो कि रिकॉग्नाइज होना चाहिए थ्रू CCI। और अगर वो सेंट्रल स्टेट गवर्नमेंट का भी इंस्टीट्यूट नहीं है, टीचिंग इंस्टीट्यूशन भी नहीं है, तो प्राइवेट हॉस्पिटल, और उस प्राइवेट हॉस्पिटल के अंदर जो है कम से कम 5 इन बेड्स होने चाहिए, इन पेशेंट्स बेड होने चाहिए, क्वालिफाइड आयुष प्रैक्टिशनर राउंड द क्लॉक होना चाहिए, डेडिकेटेड आयुष थेरेपी सेक्शन होना चाहिए, एक OT भी होनी चाहिए अगर उस सेंटर में सर्जिकल प्रोसीजर्स वगैरह होते हैं, और रिकॉर्ड रखने के लिए एक सेपरेट सेक्शन होना चाहिए। और ये रिकॉर्ड जब भी इंश्योरेंस कंपनी का रिप्रेजेंटेटिव आए तो आपके पास रेडी होना चाहिए और आपने इमीडिएटली निकाल के दिखाने के मकसद से होता है। आयुष डे केयर सेंटर ये एक बहुत अच्छी चीज हो गई है। देखिए ये डे केयर सेंटर की ना, अभी तक तो एलोपैथिक में भी मैं नहीं देखता था कि भी वहां पे डे केयर सेंटर जो है रजिस्टर्ड होते हैं या उनके जो है क्लेम पेएबल होते हैं। यस, डे केयर सेंटर में ऐसा तो देखने को मिलता था, जैसे आईज क्लिनिक है, ENT क्लिनिक है, वो शॉर्ट प्रोसीजर करते थे और भेज देते थे, उनके नर्सिंग होम रजिस्टर्ड होते थे तो उनके बेसिस पे उनको जो है क्लेम मिलता था।
ये नहीं कि डे केयर सेंटर रजिस्टर्ड है सिर्फ और वो अपनी फॉर्मेलिटीज को फुलफिल कर रहा है तो उसका जो है क्लेम पेएबल होगा, ऐसा नहीं होता था। वो पेएबल होते थे ऑन द बेसिस ऑफ द रजिस्ट्रेशन विद द डायरेक्टरेट ऑफ हेल्थ सर्विसेज। तो आयुष डे केयर सेंटर कौन हो सकते हैं? इट कैन बी कम्युनिटी हेल्थ सेंटर, इट कैन बी प्राइमरी हेल्थ सेंटर, इट कैन बी डिस्पेंसरी, इट कैन बी पॉलीक्लिनिक और इट कैन बी योर क्लिनिक। तो देखिए कितना अच्छा हो गया कि आयुष डे केयर सेंटर में आपकी क्लिनिक जो है वो भी रजिस्टर्ड हो सकती है, लेकिन रजिस्टर्ड करने के लिए आपको कुछ मिनिमम क्राइटेरिया है, कुछ मिनिमम क्राइटेरिया जो है वो फुलफिल करने पड़ेंगे। या तो आप रजिस्टर कराएं विद द लोकल अथॉरिटीज, बट सिंस आई एम प्रैक्टिसिंग इन दिल्ली, मैं दिल्ली का सिनेरियो बताता हूँ। हमारे यहाँ तो अभी तक कोई रजिस्ट्रेशन का नहीं हुआ है कि हमारी क्लिनिक्स को रजिस्टर्ड किया जाए। इन द एब्सेंस ऑफ दैट हमारे के ऊपर जो एप्लीकेबल होगा वो होगा, हमें एक एक्रेडिशन लेना है, NABH एक्रेडिशन। NABH एक्रेडिशन अगर हो गया तो आपकी सारी प्रॉब्लम की समस्या का समाधान हो गया। अब NABH एक्रेडिशन जो है वो अपने आप में लेना भी एक वो है, लेकिन प्रॉब्लम है, हो सकता है, बट इतना भी बहुत बड़ा प्रॉब्लम नहीं है कि आप उस तरफ सोचे भी ना। आप जरूर सोचिए, अपने आप को अपग्रेड कीजिए, अपने आप को एक्सपेंड कीजिए। मेरा एक विजन है कि दिल्ली के अंदर मैक्सिमम क्लिनिक जो है NABH एक्रेडिशन होना चाहिए। और एडा की भी एक गाइडलाइंस आई है कि जितने भी एग्जिस्टिंग सेंटर्स हैं दे शुड गेट देमसेल्फ रजिस्टर्ड विद द NABH एट एन अर्लीस्ट, ताकि उनका क्लेम एडमिसिबल हो सके, उनको भी पॉलिसीज का बेनिफिट हो सके। बट ये जो आयुष डे केयर सेंटर होता है, ऐसा नहीं होगा कि भाई कोई भी खोल ले। इट शुड बी ओन्ड बाय ए क्वालिफाइड आयुष प्रैक्टिशनर रजिस्टर्ड विद द लोकल अथॉरिटीज, मस्ट बी हैविंग स्टेट काउंसिल नंबर एंड देयर शुड बी सेपरेट आयुष थेरेपी सेक्शन, जैसे कि आयुष हॉस्पिटल के अंदर था, विद OT फॉर द सर्जिकल सेंटर्स एंड जो सर्जरी परफॉर्म करते हैं। They should also maintain the daily records, or your daily records should be handy, should be produced immediately whenever a representative of a insurance company comes for the verification of the records. So what are the procedure payable? All Panchkarma procedures like Vamangam, Virechangam, Nasyagam, Rakmokshan, and Basti Chikitsa is payable under this policy. अब आप में एक वो भी मन में क्वेश्चन आ रहा होगा कि उधर 4.15 एक्सक्लूजन क्लॉज में मैंने आपको बोला था कि जितने भी अभ्यंगम है, काया सेक है, जितने भी स्पा से रिलेटेड ट्रीटमेंट है, दैट इज नॉट पेएबल। या उद्वर्तनम जो करते हैं, उद्वर्तनम इज रिलेटेड टू द मैनेजमेंट ऑफ द ओबेसिटी। सो ये ओबेसिटी का मैनेजमेंट जो एक्सक्लूजन क्लॉज में जाता है तो वहाँ वो पेएबल नहीं होगा। इवन हाँ, इसमें ये भी ध्यान देना है कि इवन इफ इट इज अ मॉर्बिड ओबीस, even if it is leading to uncontrolled hypertension, diabetes, even then it is not payable. So mind it, you have to keep this in mind. Now most of my friends are practicing anorectal, so anorectal surgery के जो जितने cases होंगे they are also payable. This slide I have taken from the net and इसमें 139 day care procedure है which has been regulated by the GIPSA. GIPSA एक कंपनी है जनरल इंश्योरेंस की जो कि प्रेफर्ड नेटवर्क बनाती है दिल्ली के अंदर, और उनसे एक एग्रीमेंट साइन कर पड़ता है। जब भी आप उनसे साइन करते हैं एग्रीमेंट तो उनके बेसिस पे 139 उनके प्रोसीजर हैं दैट आर पेएबल। सो उसमें फ्रॉम पॉइंट 80 to 86 इज रिलेटेड टू अस। जितने भी एनोरेक्टल डिसऑर्डर्स हैं, मैनेजमेंट ऑफ द हेमरॉइड्स, फिस्टुला, लो एनल, हाई एनल, and then management of the fissure with the sentinel pile mass, management of the pilonidal sinus, so that are all payable. जो भी क्लेम आएगा all insurance company are liable to pay provided कि ये सारे disorders जो है इसका मैनेजमेंट 2 साल की वेटिंग के बाद होना चाहिए। सो नाउ ये सब कुछ प्रोसेस हो गया, पेशेंट आपके पास आया, पेशेंट ने आपसे इलाज भी कराया, सारे जो मैंने पहले प्रोसेस बताए ये सारा ट्रीटमेंट कराया, उसके बाद उसको जो है क्लेम कैसे लॉन्च करना है और क्लेम से रिलेटेड क्या क्या डेफिनेशंस होती हैं वो मैं आपको बताना चाहूँगा। सो क्लेम क्या है? एक प्रोसेस जिसमें कि जब कोई अनयूजुअल हैपनिंग होती है और उसके बाद जो है पेशेंट आपके पास आता है और ट्रीटमेंट कराता है तो उसका क्लेम लॉन्च होता है। सो इस क्लेम लॉन्च के लिए जो है पहले आपको इंटीमेट करना पड़ता है, और ये इंटीमेशन कुड बी टू एनीवन, मे बी अंडरराइटर्स जो होते हैं इंश्योरेंस कंपनी होती है, एंड टू द थर्ड पार्टी एडमिनिस्ट्रेटर। सो जब आप क्लेम इंटीमेट करते हैं और इंटीमेशन पहुंच गई क्लेम इंश्योरेंस कंपनी को,
So what the process they starts, they immediately mark it to some person who is well versed with the policy terms and conditions, जिसके अंदर वो पेशेंट एडमिट हुआ है, और उसकी इन्वेस्टिगेशन, उसकी फैक्ट्स फाइंडिंग के लिए एक प्रोसेस शुरू हो जाता है कि वाकई में ही वो पेशेंट जो है उस प्रोसेस, उस बीमारी के लिए एडमिट हुआ है। तो उसका जो है एक सर्वे होता है, और वो सर्वे करके एक रिपोर्ट बनानी होती है, और वो रिपोर्ट पढ़ के बन करके एक इंश्योरेंस कंपनी को जाती है। इंश्योरेंस कंपनी से आपको एक क्लेम फॉर्म इशू होगा, और वो आपको डॉक्टर्स, एज ए डॉक्टर यू हैव टू साइन, आपके अंडर में वो पेशेंट है तो आपको वो साइन करना पड़ेगा। दैट इज योर लायबिलिटी, एंड दैट इज योर, यू आर ऑल ड्यूटी बाउंड टू साइन दैट। सो जब वो फॉर्म साइन होगा, देन द रोल कम्स ऑफ थर्ड पार्टी एडमिनिस्ट्रेटर। ये क्लेम सारा वहां जाएगा, वहां असेसमेंट होगी कि एज पर द नॉर्म्स, एज पर द टर्म्स एंड कंडीशन ऑफ द पॉलिसी, किस किस हेड में क्या क्या एक्सपेंडिचर्स हुए हैं और उसमें कितना पेबल है। बेस्ड ऑन दैट एक क्लेम अमाउंट कैलकुलेट होगा, और वो क्लेम अमाउंट एक टीपीए इज लायबल टू पे। बट देयर आर इंसिडेंट्स कि जहां पे ये क्लेम ना पेबल हो, अगर आपने जो पॉलिसी की टर्म्स एंड कंडीशन है उससे कहीं कोई डेविएशन किया हो, तो आपका क्लेम हो सकता है पे की जगह नो क्लेम या रेप्यूडिएट हो जाए। यहाँ एक वर्ड यूज हुआ है रेप्यूडिएशन। So repudiation is a word which we use when the claim is cancelled and it is not payable. Then we use the word repudiation, or it is no claim. So in that scenario, company is not liable to pay anything, any amount related to that. Claim form जो है, अब पेशेंट आपके यहाँ ट्रीटमेंट हो गया, तो उसके बाद वो डिस्चार्ज का टाइम आया। डिस्चार्ज के टाइम में आपको क्लेम फॉर्म साइन करके उसको डेफिनेटली देना है, उसको डिस्चार्ज समरी देनी है। डिस्चार्ज समरी में सारे फैक्ट्स लिखने हैं आपने। मैंने कई बार डिस्चार्ज समरी देखी है जिसमें क्या होता है, कुछ नहीं लिखा होता है, कोई हिस्ट्री नहीं लिखी होती है, जस्ट डायग्नोसिस लिया, लिखा, ट्रीटमेंट लिखा, और ट्रीटमेंट क्या लेना है दे करके पेशेंट को आपने डिस्चार्ज समरी दी। ऐसी डिस्चार्ज समरी हम कभी भी इंश्योरेंस कंपनी में उसको एंटरटेन नहीं करते हैं। और अगर लगता है कि हाँ क्लेम हो सकता है पे करने वाला हो, तो सारे हम जो है इंक्वायरी करनी शुरू करते हैं, या हम पेशेंट को कहते हैं कि एक लेटर आपसे इन डिटेल लेकर के आए कि क्या उसको प्रॉब्लम थी, कितने दिनों से उसको प्रॉब्लम थी, क्या उसको ड्यूरेशन था, उसके साथ साथ उसको क्या और कंडीशंस थी, उसका टाइम ऑफ एडमिशन क्या था, टाइम ऑफ डिस्चार्ज क्या था, उसको कोई पुरानी हिस्ट्री तो नहीं है कि कहीं वो स्मोक करता हो, अल्कोहल लेता हो। तो इस सब बातों की इंफॉर्मेशन हमें चाहिए होती है। विदाउट दैट वी आर नॉट इन ए पोजिशन टू सेटल द क्लेम्स। बिल्स, यू आर आल्सो लायबल टू गिव ऑल द बिल्स। अब इस बिल के अंदर जो है आपने ऐसा नहीं कर सकता कि ये पैकेज है मेरा, ये पैकेज में मैंने इतना अमाउंट ले लिया। नो, दैट इज नॉट ए प्रोसीजर। बिल्स में आपको यू हैव टू गिव बाइफर्केशन, यू हैव टू टेल व्हाट योर रूम रेंट इज, व्हाट इज योर नर्सिंग केयर चार्जेस, व्हाट इज योर आरएमओ चार्जेस, व्हाट इज योर डिस्पोजेबल चार्जेस, आपने कोई प्रोसेस वगैरह लगाया या आपने कोई और चीज किया, तो वो सारा आपको बताना पड़ेगा। सारे हेड्स में आपको बाइफर्केशन देनी पड़ेगी। किसी भी हेड में अगर आपने अगर कोई इन्वेस्टिगेशन भी कराया है, तो उस इन्वेस्टिगेशन में आपने जो जो इन्वेस्टिगेशन की है वो आपको सेपरेट हेड में देना पड़ेगा। लाइक आपने यूरिन एनालिसिस किया तो यूरिन के आप बताइए, आपने बायोकेमिस्ट्री किया तो आप कम से कम सीबीसी का चार्ज बताइए कि आपकी सीबीसी की चार्ज क्या है। आपने बायोकेमिस्ट्री कराई तो आप बताओ केएफटी का चार्ज क्या है, एलएफटी का क्या है, लिपिड प्रोफाइल क्या है, आपने सब बताना पड़ेगा। ईसीजी के क्या चार्जेस है, आपने सीटी स्कैन कराया तो उसके क्या लगाए आपने चार्जेस, आपने एमआरआई कराया तो क्या चल रहा है। तो ये सब ना बाइफर्केशन में देना होगा। आप लमसम करके बिल भेज दोगे तो आपको बिल वापस ही आएंगे। हॉस्पिटल का रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट भी आपको साथ में देना पड़ेगा। अगर आपको हॉस्पिटल रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट नहीं है तो आपको एनएबीएच सर्टिफिकेट दे दें, मेडिकल और फिटनेस सर्टिफिकेट देना है साथ में, और इन्वेस्टिगेशन जो भी आपने किए हैं दैट हैज टू बी गिव इन ओरिजिनल, जितने भी हैं, एक्सरे किया, सीटी स्कैन किया, एमआरआई किया, ये आपने देना है। अच्छा, एक बात इसमें और भी ध्यान देनी है, अगर आपने एक्सरे, सीटी स्कैन, एमआरआई दिया है तो ये नहीं है कि सिर्फ आपने उसकी जो रिपोर्ट है वो दे देनी है, उसकी फिल्म्स भी साथ में उसको देनी पड़ेंगी आपको। अगर आपने फिल्म्स नहीं दी है तो उसका पेशेंट का उस हेड में जो एक्सपेंडिचर है वो नॉन पेएबल में चला जाएगा, वो नो क्लेम हो जाएगा, उसको उसका अमाउंट ही नहीं मिलेगा। अब जब क्लेम आपके यहाँ से गया, वहां पे पहुंचा टीपीए में, तो कुछ कुछ जो है वहां पे पता चलता है कि कुछ केसेस पेएबल हैं, कुछ नहीं भी हैं, कुछ ऐसा भी समझ में आता है कि फ्रॉड्स हुए हैं। तो वो फ्रॉड्स किस किस लेवल पे पेशेंट कराते हैं या कहीं किसी सेंटर्स के लेवल पे हुए, मैं आपको ये भी बताना चाहूंगा कि कैसे किस तरह ये फ्रॉड्स हो सकते हैं, होते हैं।
और जिनसे आप लोगों को, मेरी स्ट्रिक्ट इंस्ट्रक्शंस हैं कि बचना है, किसी भी तरह के डॉक्यूमेंट्स में हेर फेर नहीं करनी है। अगर आपके डॉक्यूमेंट्स में हेर फेर हुई और वो किसी के पकड़ में आ गया इंश्योरेंस कंपनी के, सो फिर उसका जो खामियाजा है वो बड़ा ही गलत है। उसके जो कंसिक्वेंसेज हैं वो सिर्फ डी पैनल से होकर के, आप हो सकता है आपका नर्सिंग होम या आपका आयुष डे केयर सेंटर हॉस्पिटल डी पैनल हो सकता है। डी पैनल से लेकर के आपकी स्टेट काउंसिल जहां पे आप रजिस्टर्ड हैं वहां तक भी कंप्लेंट कर सकते हैं कि भाई आपको आपका स्टेट काउंसिल नंबर छीना जाए। सो इतनी तक पनिशमेंट होती है। सो आपने किसी तरह के इस तरह के इनकन्वीनियंस विद द पेशेंट रिपोर्ट्स को अल्टर नहीं करना है, बिल्स को अल्टर नहीं करना है, और इन सब चीजों में बहुत ध्यान देना है। ये जो फ्रॉड है ना, ये फ्रॉम द पॉलिसी के इंसेप्शन से पहले से ही शुरू हो जाता है। पेशेंट जो है, आपको पॉलिसी लेनी है, उससे पहले हमने प्री पॉलिसी इन्वेस्टिगेशन कराया है। उसको लगता है मैं डायबिटिक हूँ, मैं हाइपरटेंसिव हूँ, मुझे तो कैटरेक्ट हुआ है और मुझे तो अगले साल सर्जरी करानी है, डॉक्टर साहब ये सब चीज जो है ना आप मत लिखना। पेशेंट्स आके आपको ये बोल सकते हैं या आपके जो डायग्नोस्टिक सेंटर उसमें बता सकते हैं कि ऐसा करिए। आपने बिल्कुल भी इस चीजों पर ध्यान नहीं देना। जो आपके फैक्ट्स सामने आए वो आपने फैक्ट्स सामने देने हैं, उनमें कहीं पे भी कोई डेविएशन नहीं करना। अब जब उन्हें इन्वेस्टिगेशन करा लिया तो उसके बाद प्रपोजल फॉर्म भरने का टाइम आता है। प्रपोजल फॉर्म भरना आता है तो उसमें जो है डायबिटिक की हिस्ट्री, हाइपरटेंशन, मीनोरेजिया, मेट्रोरेजिया की हिस्ट्री, यूट्राइन ब्लीडिंग, फाइब्रॉइड्स, इन सब हिस्ट्रीज को वो जो है चाहता है कि छुपा दो डॉक्टर साहब, ताकि जो है आगे क्या नाम कहते हैं मुझे क्लेम मिलने में आसानी हो। जबकि होता कुछ और है। क्योंकि ये जो फॉर्म आप भर रहे हो ना, इसके बाद एक कॉलम आपके भरने का भी है जो डॉक्टर्स अटेंडिंग है। आप एज ए डॉक्टर ओनर्स नहीं, लेकिन हो सकता नर्सिंग होम के लिए नहीं, हो सकता है कोई प्राइवेट क्लिनिक्स के अंदर आते हो फॉर्म भरवाने के लिए और उनको कहते हो कि मेरी प्रीवियस हिस्ट्री को छुपाइए आप। तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना है। फिर रेफरल क्लिनिक्स में होता है कि आप पेशेंट आपके पास आया और उसको मान लो 3 या 4 दिन से फीवर नहीं उतर रहा है और आप कहते हो कुछ कुछ टेस्ट करने पड़ेंगे, तो टेस्ट से रिलेटेड आप इन्वेस्टिगेशंस लिख के देते हैं और वो कहता है डॉक्टर साहब छोड़ो ना, ये मैं टेस्ट में अपने आप नहीं कराता, मेरे पास पॉलिसी है, मुझे तो आप हॉस्पिटलाइज करो, मेरे को तो वहां से आप करा दो कि मैंने तो 4 साल से पॉलिसी ले रखी है, 5 साल से पॉलिसी ली हुई है, उसका क्या फायदा। सो आपने ऐसे कभी भी पेशेंट के बहकावे में नहीं आना, बात उसकी बातें नहीं सुननी है। आपने जस्ट अपना कहो जी ये इन्वेस्टिगेशन है, आपने जहां मर्जी से करनी हो करा के लाओ, मुझे ये इन्वेस्टिगेशन चाहिए, दैट्स ऑल। बस किसी तरह से वो मत सोचना कि भाई मैं इसको हॉस्पिटल में एडमिट कर दूं, इसके टेस्ट कर दूं। टेस्ट तो होते हैं 1,500, 2,000, 3,000, 4,000 के, और उसकी जो है हॉस्पिटलाइजेशन के एक्सपेंसेस होगा 12-15,000 का, और उसका नो क्लेम बोनस जो है वो भी जाता है। सो आफ्टर इन्वेस्टिगेशन, चलो मान लिया वो करा दिया, तो उसके बाद जो है वो हॉस्पिटल में एडमिट हुआ, उसके बाद वो ड्यूरेशन ऑफ इलनेस पे आया। अब वो कहता है जी मेरी तो प्रीवियस हिस्ट्री जो है वो छुपा हुआ। इस तरह से किसी भी क्लेम में आपको इस तरह से आपको किसी की प्रीवियस हिस्ट्री जो है वो नहीं छुपानी है। अब जैसे एक मोटे तौर पर मोस्ट ऑफ द पेशेंट्स नाउअडेज आर अल्कोहलिक, तो वो जो अल्कोहलिक केसेस हैं उसमें वो कहते हैं कि अल्कोहल की हिस्ट्री छुपा दो, डॉक्टर साहब इसमें लिखो मत हिस्ट्री ऑफ अल्कोहलिज्म प्रेजेंट। तो अगर क्योंकि अल्कोहलिज्म का वर्ड अगर उसमें आ गया या हिस्ट्री ऑफ अल्कोहल इंटेक आ गया, तो उसका तो सारा का सारा क्लेम नो क्लेम, कुछ भी और नहीं देखना हमने, चाहे वो पेएबल होगा नहीं पेएबल होगा, हमने देना ही नहीं। तो ये चीजें आपने कभी भी नहीं छुड़ाई। अगर आपको ये आता है पेशेंट आया इमरजेंसी में और आपको स्मेल ऑफ अल्कोहल पॉजिटिव है, तो आप लिख दीजिए जस्ट यहाँ अल्कोहल की हिस्ट्री नहीं है, बट स्मेल ऑफ अल्कोहल जो है एट प्रेजेंट इज पॉजिटिव। जस्ट इतना आपने फाइंडिंग्स में अपने जो इमरजेंसी कार्ड है उसमें जरूर लिखना है। अब सब कुछ हो गया तो उसके बाद वो बिल की एडजस्टमेंट की बात करेगा कि डॉक्टर साहब ये जो मेरे को नॉन पेबल वाला है ये बिल एडजस्ट करो, नेबुलाइजर का, ग्लूकोमीटर का ये एडजस्ट कर दो। आपने वो भी नहीं करना है। और बिल के अमाउंट बढ़ा करके बात करें तो वो भी आपने कभी नहीं करना है। ये तो रही मेडिक्लेम पॉलिसी में। कई बार वो पीए पॉलिसी के साथ आते हैं, तो पीए पॉलिसी में क्या होता है, उनको बेनिफिट मिलता है, वीकली बेनिफिट्स मिलते हैं, उनको रेस्ट का बेनिफिट मिलता है फ्रॉम द प्लेस ऑफ देयर एम्प्लॉयमेंट, और उस प्लेस जो ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ रेस्ट का जो है उनको वीकली बेनिफिट्स मिलते हैं। सम इंश्योर्ड का 1%, तो वो उसमें भी एडजस्टमेंट चाहते हैं कि भी 2 महीने की जगह मुझे 3 महीने का, तो मैं थोड़ा और आराम करना चाहता हूँ, वो नहीं करना है। बिकॉज इंश्योरेंस कंपनी का एक सेट रूल है कि हाँ अगर लोअर लिम्ब का फ्रैक्चर है तो ये लोअर लिम्ब का फ्रैक्चर जितनी देर में यूनाइट होगा, बड़ा है तो देर से होगा, छोटा है तो जल्दी यूनाइट हो जाएगा, उसमें भी मैथमेटिकल फॉर्मेशन की तरह काम चलता है। अपर लिम्ब का है तो जल्दी होगा, लोअर लिम्ब का है तो देर से होगा। ये सब हमारे एक सेट पैरामीटर्स होते हैं, बेस्ड ऑन दैट वी कैलकुलेट। देन कई बार वो कहते हैं कि फिटनेस एंड मेडिकल सर्टिफिकेट में डेट एडजस्ट कर लो, बिल्कुल भी नहीं करना।
बिल्स हायर अमाउंट के देने हैं बिल्कुल ले लेना। सो बेस्ड ऑन दिस जो डॉक्यूमेंट्स उसके जाते हैं उसमें ऐसा भी हो सकता है फ्रॉम द टीपीए साइड इट कैन बी डिनाइड कि हाँ क्लेम इज नॉट पेएबल एंड कैन बी रिप्यूटेटेड। अगर ऐसा होता है तो उसमें किस किस कंडीशन में होता है कि इफ देयर इज ए डिले इन क्लेम इंटीमेशन, कि मान लो पेशेंट आपके हॉस्पिटल में एडमिट हुआ तो उसको 24 आवर्स के बीच में इंटीमेट करना चाहिए था, वो नहीं किया। डिले इन सबमिशन ऑफ द क्लेम रिलेटेड टू द डॉक्यूमेंट्स, अगर उसको जिस स्टिपुलेटेड टाइम में जमा करने थे डॉक्यूमेंट्स डिस्चार्ज के बाद वो नहीं किया तो तब भी क्लेम देना ही होगा। हॉस्पिटल आपका डी पैनल है और आपके बिल वहां चले गए तो भी पेएबल नहीं होगा। कोई प्री एग्जिस्टिंग डिजीज है तो पेएबल नहीं होगा। आपके रिकॉर्ड्स में और जो आपने डिस्चार्ज समरी का रिकॉर्ड दिया है उसमें कहीं कोई डिस्क्रिपेंसी आएगी तब भी पेएबल नहीं होगा। या पेशेंट सिर्फ और सिर्फ इन्वेस्टिगेशन के लिए एडमिट हुआ कि जी उसको तो सिर दर्द हो रहा था, एमआरआई करा ली, एमआरआई एडमिट होके कराया और उसके बाद मैनेजमेंट कुछ नहीं हुआ है, किसी तरह के कोई उसको ट्रीटमेंट एक्टिव मैनेजमेंट नहीं हुआ, पेशेंट जो है वो एमआरआई की रिपोर्ट के साथ डिस्चार्ज होकर आ गया और वो बिल प्रोड्यूस कर दिया। सो ऐसे क्लेम जो है नो क्लेम में जाएंगे। या क्लेम रिलेटेड डॉक्यूमेंट्स नॉट शोन टू द रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द डॉक्टर्स, मान लो कोई डॉक्टर्स आपके यहाँ पे आपके पास विजिट किया और आप कहते हो मैं तो डॉक्यूमेंट्स नहीं दिखाता हूँ, तो वो अपनी एक सिंपल रिपोर्ट लिख के चला जाएगा, द डॉक्यूमेंट्स नॉट शोन बाय द ट्रीटिंग हॉस्पिटल, hence the claim denied and the claim should be closed as a no claim or claim should be repeated। या आपका जो रिप्लाई है क्वेरीज का वो आपका सेटिस्फैक्टरी नहीं गया, आपसे कुछ क्वेश्चंस पूछे गए कि इस चीज में ये क्या किया वो किया और उसमें कोई सेटिस्फेक्शन नहीं मिलता है तो फिर भी वो आपका नो क्लेम होगा। या आपका नर्सिंग होम हॉस्पिटल रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट जो ईयरली रिन्यू होता है फ्रॉम द डायरेक्टरेट ऑफ हेल्थ सर्विसेज वो प्रॉपर्ली रिन्यू नहीं हुआ तो अगर आपके पास फिर भी आप लगता है कि टीपीए ने बहुत गलत किया है मेरे साथ और ये तो क्लेम पेएबल होना चाहिए था एज पर टर्म्स एंड कंडीशन, तो आपके पास फिर ऑप्शंस होती हैं। आप ऑप्शंस में अपना ग्रीवेंस सेल को अप्रोच कर सकते हैं और ये ग्रीवेंस सेल जो है जिस ऑफिस से आपने पॉलिसी ली है उसके डिवीजन ऑफिस, रीजनल ऑफिस या हेड ऑफिस में होगी। आप वहाँ के रिप्लाई से सेटिस्फाइड नहीं है तो आप कंज्यूमर कोर्ट में जा सकते हैं। कंज्यूमर कोर्ट डिपेंड करता है कि कितने अमाउंट का आपका क्लेम है, वो डिस्ट्रिक्ट लेवल का केस है, स्टेट लेवल का है, नेशनल लेवल का है, तो उस हिसाब से उन कोर्ट्स में जाता है। छोटा क्लेम है, हजारों का है तो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में, लाखों का है तो आपका स्टेट में, करोड़ों का है तो भी नेशनल कंज्यूमर कोर्ट में जाएगा। और यहाँ से भी अगर आप सेटिस्फाइड नहीं है तो कोर्ट ऑफ लॉ है, लोअर कोर्ट, हाई कोर्ट एंड सुप्रीम कोर्ट। So to summarize my all this presentation, I want to summarize it कि आप जब भी दो तरीके से टेक होम मैसेज देना चाहूँगा। एक तो वो जो पॉलिसीज लेना चाहते हैं उनके लिए, तो यू शुड हैव डन एनफ रिसर्च बिफोर चूजिंग ए कंपनी, और जिस कंपनी को आपने चूज किया उसके हो सकता है 4 या 5 प्रोडक्ट्स हों, उसमें आपको क्या चीज़ चाहिए उसके हिसाब से, एंड जो टीपीए उसमें इन्वॉल्व है उसका पूरा आप फीडबैक ले करके तब आपने पॉलिसी लीजिए। ये तो उनके लिए हुआ जो पॉलिसी ले रहे हैं। अब जो हॉस्पिटल्स हैं हमारे उनके लिए कि आयुष डे केयर सेंटर के लिए एडवाइस है कि आप अपने सेंटर्स को जल्द से जल्द NABH एक्रेडिशन कराएं। NABH एक्रेडिशन का आपको बहुत बेनिफिट मिलने वाला है आने वाले दिनों में, आप सोच भी नहीं सकते हैं। मुझे तो ऐसे लग रहा है कि इवन ये फैसिलिटीज तो एलोपैथिक सेक्टर में भी नहीं है जितना हमारे यहाँ पे आ रही है। और एक बार NABH एक्रेडिशन आप लोगों को मिल जाए तो फिर बाद में देखेंगे कि TPA के साथ कैसे पैनल हो सकता है। अभी ये बहुत जल्द होगा इस पे कमेंट करना, क्योंकि NABH का जो एक्रेडिशन के लिए डे केयर सेंटर और आयुष हॉस्पिटल की जो गाइडेंस बनी है वो जस्ट अभी 4 या 5 मंथ्स बैक की है। इफ आई करेक्टली रिमेम्बर द डे वाज 30 नवंबर 2019, तो अभी 5 महीने ही टोटल हुआ है। 5 महीने में देखो कोरोना का चक्कर हुआ, स्टार्ट हो गया, सो सारा कुछ लॉकडाउन में चला गया है, तो जो अब तक प्रोसीजर मिनिस्ट्री में होना था शायद वो नहीं हुआ है। तो टू कमेंट अबाउट टीपीए इट्स टू अर्ली, बट मुझे ऐसा लगता है कि द डेज आर नॉट फार ऑफ, जब आपके पास NABH एक्रेडिशन होगा तो टीपीए एम्पैनलमेंट आपको बहुत जल्दी मिलेंगे, और टीपीए एम्पैनलमेंट अगर आपका हो गया तो यू विल हैव ए कैशलेस फैसिलिटी फॉर योर पेशेंट्स। सो आपने इस पे बहुत जल्दी काम करना है। जिन सेंटर्स के नहीं है मैं कहूँगा वो जल्दी जल्दी इस चीज पे काम करें। एंड किसी भी तरह का आप पेशेंट को जो है कमिट मत करके चलिए अभी कि भी आपका जो है हो जाएगा। आप हमेशा ये कहिए कि आपकी पॉलिसी की टर्म्स एंड कंडीशंस पे डिपेंड करता है कि कितना क्लेम आपको मिलेगा। मैंने आपको शुरू में बताया था कि पॉलिसीज जो हैं
जितनी भी इंश्योरेंस कंपनी है हमारे पास जो है, कम से कम इंडिया के अंदर इस वक्त 15-20 कंपनीज हैं इंश्योरेंस कंपनी, जिसमें 4 तो हमारी मेजर कंपनीज हैं पब्लिक सेक्टर में, प्राइवेट सेक्टर्स में हमारे पास 15 एक हैं। तो उसमें जितनी भी कंपनीज हैं सबके अपने अपने टर्म्स एंड कंडीशंस हैं, और उन टर्म्स एंड कंडीशंस पे जो है क्लेम पेएबल होगा। सो अब इस चीज को याद रखना कि कौन सी कंपनी कितना रियम्बर्स करेगी, इट्स ए वेरी टफ जॉब। या तो उसका एक चार्ट बना जाए और चार्ट आप सब लोगों को हैंडी दिया जाए, तो उससे तो पॉसिबल है, अदरवाइज नहीं तो आपके लिए ये याद करना कि वो कंपनी में तो इतना मिलेगा, इस सेक्शन में इतना मिलेगा, इस सेक्शन में इतना मिलेगा, टोटल आपको इतना मिल सकता है। इस बारे में अभी कोई कमिट मत करो, उनको आपने सिंपली ये वर्ड बोलना है पेशेंट को कि भाई विल गेट बैक टू यू, या आप अपने जो है इंश्योरेंस एजेंट से बात कीजिए, क्या वो हो सकता है। तो कमिटमेंट कुछ मत करना, एंड मेक श्योर योर डॉक्यूमेंटेशंस आर प्रॉपर बिफोर द पेशेंट इज डिस्चार्ज फ्रॉम द हॉस्पिटल। आपके डे केयर सेंटर में से डिस्चार्ज होने से पहले या हॉस्पिटल में डिस्चार्ज होने से पहले उनको आपने ये डॉक्यूमेंट्स जरूर देने हैं, क्लेम फॉर्म, बिल्स with the bifurcation, discharge summary, medical fitness certificate, and original investigation report with the film. If you feel your setup lacks any facility or you are not in a position to fulfill criteria for reimbursement, then it's better आप ऐसे पेशेंट्स को सेकेंडरी और टर्शरी केयर सेंटर में भेज दें और वहाँ पर अपने अंडर में ही एडमिट करें। तो ये ज़्यादा एडवाइजेबल है rather than sending any wrong signals or wrong messages in the community. Thank you very much. Thanks for giving me opportunity. Thank you, sir. Thank you so much for this lovely session today, and we got a Dr. very good. Piyush, I will be happy to answer if Yes, sir. if Yes, at sir. all if there is any query of my Yes, sir. fellow Yes, sir. colleagues. We have already received. I request you to, you can maybe stop these slides now, and the people, the Okay, audience okay. can Let see let now. me just stop it. Yeah, you can just stop sharing so that we can have an interaction, and request all the doctors also meanwhile to share their queries in the chat. And Dr. Chabra, we got first question already, like when you were doing the session. I So we think Dr. Piyush, you just spell out all the queries of my fellow colleagues, and I will be happy to answer all this. Yeah, so the first question we received is from Dr. Sunita, that is exclusion clause same for different company policies or it's different? See, more or less it is same. More or less it is same. अगर किसी पॉलिसी में कुछ चेंजेस होंगे तो एक आधी चीज इधर उधर होगी, बाकी वैसे जनरली एडा की गाइडलाइंस को फॉलो करना होता है। एडा इज इंश्योरेंस रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी, इट्स हेडक्वार्टर्स इन हैदराबाद, सो वी हैव टू फॉलो दैट। ऐसा नहीं हो सकता कि हम अपने मन मर्जी से कोई प्रोडक्ट बना लें या पॉलिसी बना के बाजार में बेचें, ऐसा नहीं हो सकता। Okay, sir. सो यू हैव टू एक्सक्लूजन क्लॉज आपको सेम फॉलो करना पड़ेगा। जो एडा ने आपको हॉस्पिटल, आयुष हॉस्पिटल की, आयुष डे केयर सेंटर की डेफिनेशन दे दी, यू हैव टू फॉलो दैट। Right, sir. Second question, we are getting that NABH is very costly for a clinic. What we can do for that? जी, NABH में मैं बताऊं, अगर आप NABH एक्रेडिटेशन करा देते हैं ना, तो हो सकता है कुछ प्रोसीजर के चार्जेस आप अपनी क्लिनिक में जो कर रहे हैं ना, वो आप कम ले रहे हो, और NABH होते ही जो आपको CGHS के रेट्स वगैरह अगर वो मिले ना, तो आपको लगेगा कि ये तो जो हमारा NABH एक्रेडिटेशन का जो काम है वो तो वैसे फ्री में हो गया। तो NABH के लिए जरूर करें काम। और देखो, गवर्नमेंट की गाइडलाइंस है, वी हैव टू फॉलो दैट। कितनी बढ़िया चीज दे दी हमें जो है कि भाई हमारे NABH करा लो, बस काफी है। Right. बाकी सब चीजें छोड़ो आप। NABH की अगर आपकी हो गया, एक्रेडिशन हो गया, और NABH के जो आपका लेटर है, उस लेटर के साथ आपके क्लेम पेपर इंश्योरेंस कंपनी में जाए और आपको उसको क्लेम मिल जाए, तो आपकी प्रैक्टिस में 4 चांद लग सकते हैं। मुझे ऐसा लगता है, मुझे ऐसा फील होता है। Absolutely. क्योंकि आप देखो, मेरे को ऐसा फील होता है पिछले 30 साल से कि हम लोगों को कहीं ना कहीं इस फैक्टर से डिनाई किया गया है कि हमारा जो एक बिल हम देते हैं क्लिनिक से, मान लो, देखो मेरी कंसल्टेशन प्रैक्टिस है, मेरे यहाँ से डिस्पेंसिंग बहुत कम है, बहुत क्या ना के बराबर है। सो मैं तो कंसल्टेशन प्रैक्टिस करता हूँ और मैं पेशेंट को लिख के देता हूँ, दिस इज माय कंसल्टेशन फीस। अब वो लेकर के जाता है XYZ कंपनी के अंदर कि डॉक्टर साहब ये तो आपकी इतनी फीस तो वो देते नहीं है। तो यहाँ पे हमारी बड़ी समस्या खड़ी हुई है। तो वो जब आपका NABH एक्रेडिटेड होगा ना, तो आपका जो अमाउंट है वो सब उनको देना पड़ेगा, वो सब उनको गाइडलाइंस मिल जाएंगे अभी। Right, sir. The next question from Dr. Deepak Gupta is, which insurance companies have included Ayush in their portfolio? Every Ayush company, every insurance company has to include this. बट अभी एट प्रेजेंट मेरे पास NIC का, नेशनल इंश्योरेंस कंपनी का वो पॉलिसी का परफॉर्मा है, तो मैं तो वो आपको दिखा सकता हूँ। मैक्स भूपा भी कवर करती है, HDFC एर्गो करती है, देन आपका रॉयल सुंदरम कवर करती है,
आपकी ओरिएंटल इंश्योरेंस कवर करती है, आपकी यूनाइटेड इंडिया कवर करती है, आपकी नेशनल न्यू इंडिया इंश्योरेंस कवर करती है। कौन सी इंश्योरेंस कंपनी जो कवर कर, और एक और मैं बात बताऊं, और एक और डॉक्टर पीयूष मैं आपको एक बात बता दूं, ईडर की तरफ से गाइडलाइन आ चुकी है कि 30 सितंबर लास्ट डेट है, 30 सितंबर 2020, कि हर कंपनी को अपने प्रोडक्ट मतलब जो उनका मेडिक्लेम पॉलिसी से रिलेटेड प्रोडक्ट है उसमें दे हैव टू इंक्लूड आयुष कंपोनेंट। इट इज नाउ डेज मैंडेटरी। Great. अब गॉन आर द डेज, That's अब वो excellent. भूल जाओगी कौन सी कंपनी कवर करती है, अब तो सब कवर करेंगी, सब कुछ कवर होगा आपका। So you mean that by 30th September it is mandatory for all the insurance companies to have Ayush cover in that? यस यस। अब कोरोना की वजह से कोई डिले हो गया तो मैं नहीं कह पाऊंगा, बिकॉज एवरीथिंग विल बी डिले नाउ। Right. हो सकता है वो 30 सितंबर जो है आपका जो है दिसंबर तक चला जाए, जनवरी तक, बट सूनर और लेटर दे हैव टू कवर इट, वो करना ही पड़ेगा उनको। Right. So the next question is there any cashless facility available by the company? Not right now, but you know the days are not far ahead. जब आपका जो सेंटर रजिस्टर्ड होगा विद NABH, with that NABH you have to go to PPA, आपको कैशलेस फैसिलिटी मिलनी शुरू हो जाएगी। Right, sir. The next question from Dr. Parikshit is, what about disposable used during treatment, payable or not? Disposal. See, डिस्पोजेबल्स में आप ना डिफरेंट हेड में नहीं दे सकते कि भी आप वो है, अभी आप उसको पैकेजेस में जो आपका है। अब इसमें ये देखो आपका क्या है, आप जो पेशेंट एडमिट करोगे उसमें आप बताओ कि मेरा जो पेशेंट एडमिट हुआ और ये बेड उसने यूज किया, ये क्यूबिकल में लेटा, इसकी चार्जेस मेरे ये थे, ये मेरा रूम रेंट है, ये मेरे यहाँ जो नर्सिंग केयर हुई उसकी उसका चार्ज ये है, मेरे यहाँ जो राउंड द क्लॉक RMO बैठा है विद द आयुष क्वालिफिकेशन उसके चार्ज ये हैं। उसके बाद एक मेरे पास एक पैकेज हुआ जिसमें उसका मैंने या तो वमन कराया या उसका विरेचन कराया या मैंने उसका नस्य थेरेपी दी, तो इसका मेरा एक्सपेंडिचर ये है, नस्य थेरेपी इतना अमाउंट। अब उस अमाउंट में आपका डिस्पोजेबल सारा आ जाएगा। अब उसमें अलग से ये नहीं करेंगे कि भाई मैंने बेडशीट का ये लिया, मैंने डायपर्स यूज किए उसका ये हुआ, सो दैट इज नॉट, वो अभी नहीं होगा। Right, sir. The next question is from Dr. Sandeep Madan. Biomedical waste management and pollution control are necessary for NABH accreditation? Yes, वो तो होगा ही होगा। Right, I think biomedical waste तो in itself is applicable to each and every clinic pan India. Biomedical waste के बिना अब आगे कुछ भी काम नहीं है। Pollution Control Board certificate you have to get, clearance तो लेनी पड़ेगी ना। See, ये basic requirements हैं, ये तो आपको करना पड़ेगा। Right. Dr. Vivek Bhardwaj, I think he's not clear. He's asking how can we register our hospital in Delhi. So I think registration is in Delhi. Right. See, in Delhi we don't have any provision to get ourselves registered. We do see Directorate of Health Services don't register us. So in that absence, so यही policy बनी है ना कि NABH accreditation ले लो, छोड़ो बाकी सब। Hello. Yes, sir. Yes, sir. So the next question Hello. is, yes, sir. So next question is, how much does it cost on an average to get an Ayush daycare clinic registered? I think again daycare clinic right. Daycare clinic registered with whom? I think it is not with NABH, for NABH. I think it will be applicable NABH right now as far as insurance is concerned. Well, Dr. Piyush, there is some net problem. There is some connectivity problem going on. Yes. I think no problem. I think we can continue. The next question is how our patients can get reimbursement in case we do anorectal procedure. Okay. We will definitely get. Okay, fine. So the next question is. Hello. Yes, sir. The next question from Dr. Latul is, what is the role of GPSA in Ayurvedic treatments? Are they fixed some rates? Pardon, I could not get you. So the question What's they are the asking question? You have mentioned about GPSA, na, sir, in your lecture. So Dr. Atul is asking if GPSA. GIPSA. Right. GIPSA. I mentioned about GIPSA. Right, sir. So they are asking that are they fixed any rates for Ayurvedic treatment as well or what? No, not at all. Not right now. Because GIPSA is applicable to all, allopathic hospitals. And in GIPSA, they have taken out the name of 139 daycare procedure. And for that procedure, they have fixed the rate, but not for any treatment related to Ayush. Right. So the next question from Dr. Jyoti is,
Sir, if we refer a patient to any allopathic Hmm. hospital and patient get back to Hmm. us for a single disease, then do we get reimbursement as well or what? Dr. Piyush, you are not properly audible. Your voice is not clear. Can you please repeat it again? Yeah, I'm repeating the question. The question is that the doctor has referred the patient to any allopathic hospital, and again the patient is coming back for a particular disease to our center. So in that case, the reimbursement is Okay. feasible or not? Okay. Okay. What I can interpret from your question is that my friend wants to know about whether if they have sent patient for an allopathic hospital for the allopathic treatment, and they come back to you for the Ayush treatment. Right, sir. Is it same? Yes, If it's the same, what I feel that it's not payable. Cross-pathy is not payable nowadays until unless the allopathic doctor says ki, yeah, this problem is now beyond my purview. You can go to anybody, you can go to the Ayush practitioner, then only it's payable. There's a hitch and there's a glitch in this our policy. I mean, I've faced this problem in the past. और ये एक प्रॉब्लम थी आज से 20 साल पहले। तो ऐसा होता था कि कोई पेशेंट ट्रीटमेंट किया एलोपैथिक हॉस्पिटल में, उसके बाद आया उसने होम्योपैथिक डॉक्टर का भी बिल दे दिया, तो वी वर पेइंग दैट, बट नॉट नाउअडेज। अब तो क्रॉस पैथी इज नॉट पेबल। okay, sir. The next question from Dr. Amit is, in different region, different doctors are charging different for the procedures. So how then the cost will be regulated in the reimbursement सी criteria? अभी हो सकता है उसका कोई नॉर्म्स बने कि भाई क्या होगा, बट मुझे ऐसा लगता है कि अभी तो जो हम दिल्ली में भी चार्ज करते हैं कई बार वो सीजीएचएस के रेट से कम ही होते हैं। सो उसमें एक हो सकता है सीजीएचएस के नॉर्म्स को फॉलो करें, बट अभी तक कुछ ऐसा जो है आयुष रिलेटेड गाइडलाइंस नहीं आई है कि ये इसमें इतना मिलेगा इसमें इतना मिलेगा। देखो जैसे ना एलोपैथिक में क्या है कि वहां पे डिफरेंट जोन्स में डिवाइड किया हुआ है इंडिया को। सी Bombay is coming under different zone. Right. Delhi and NCR is coming under different zone, and rest of the India is coming under different zone. तो जो हमारे पास मुंबई के अंदर एक्सपेंडिचर है ना किसी भी एक बीमारी को ठीक करने का या सर्जरी कराने का, तो वहां पे दैट इज फार अहेड ऑफ व्हाट वी आर चार्जिंग हियर इन दिल्ली। सो जोन वाइज डिफरेंट किया हुआ है। उसी तरह से प्रीमियम का अमाउंट भी कैलकुलेट हो जाता है कि प्रीमियम अमाउंट भी उनको जो है डिफरेंट देना पड़ता है कि अगर आप मुंबई के आसपास के एरिया में रह रहे हो तो आपका प्रीमियम अमाउंट ये जाएगा, दिल्ली एनसीआर में रह रहे हो तो आपका अमाउंट ये होगा, रेस्ट ऑफ द इंडिया में तो फिर आपको ये जाएगा। सी आप ना ये नहीं एक्सपेक्ट कर सकते कि मान लो जो मुंबई का ट्रीटमेंट कॉस्ट होगा वो जो है एक अंबाला के या सोनीपत के ट्रीटमेंट के कॉस्ट से कैसे आप उसको मैच कर सकते हैं। वही चीज आपकी वहां पे 1 लाख रुपए की हो सकता है लैब कॉली हो, वही चीज आप 25,000 में आप जो है सोनीपत में, अंबाला में, पानीपत में कहीं पे करा दो। सो कॉस्ट कटिंग हो जाती है ना, वहां पे आपकी लेबर सस्ती है, आपकी लैंड सस्ती है, सब कुछ सस्ता है। सो Right. उससे जो है ये कुछ क्राइटेरिया होते हैं, इंश्योरेंस कंपनी कैलकुलेट करती है कि कितना अमाउंट पे करना है कितना नहीं देना है। Right, sir. The next question is, what kind of Ayurvedic Shalya procedures are included in empanelment list? डॉक्टर पीयूष, व्हाट आई फील, आप ना सबको म्यूट करो तभी आपकी वॉइस क्लियर होगी। कुछ ना वॉइस ब्रेक हो रही है बहुत। I think all of us are like all the participants are mute, so maybe some network issue is there. I'm ओके repeating ओके my ओके ओके question. ओके, I'm प्लीज repeating कैरी ऑन। the question. The question is, what kind of Shalya procedures are included in empanelment list? इन अन Empanelment, like reimbursement. For reimbursement, what kind of Shalya procedures are applicable? from the allopathy point of view, from the Ayurveda. Ayurveda point of Ayurveda. view, Ayurveda. Ayurveda point of view, you can do any surgery, whatever you can do. See, it should be Ayush. It should be Ayush. The thing is that it should be properly Ayush. आप ऐसा नहीं कर सकते हैं कि आयुष का सेंटर रजिस्टर्ड है, करा रहे हो वहां पे लैब कॉली और लैब कॉली का बिल दे दोगे। Right. So the next question is, I think you have already answered, but maybe for the clarification, Dr. Atul is asking, as far as the oils are concerned, so it will be payable extra or additional, or like it has to be in the procedure only, like as you mentioned about. Sir, you can charge for the oils. It's a hefty amount. I know the oils are very costly. You can charge. So you mean that you mean that let me clarify. For example, if we have done a Shirodhara, so we can charge for Shirodhara and we can also charge for the oil additionally, sir. Oh yes, you can give the bifurcation na. For in that bill you have to give bifurcation that under the head of the medicines, this medicines are
are going to be used on that person, on that patient. So I use like going to use Dhanvantri oil, or I'm going to use XYZ Brahmi tel, whatever you are going to use. तो वो जितना भी आपका oil use है, but it should be justified. ऐसा नहीं हो unjustified नहीं होना चाहिए. Justify करो आप कि हाँ ठीक है. अब हो कर तो रहे हो आप शिरोधारा, होना चाहिए वहां पे XYZ तेल, लगा रहे हो आप ABC, लाइक कोटम चुका दी थोड़ा आप सिर में शिरोधारा में लगाओगे. तो वो आप उसका जस्टिफिकेशन दे दो कि हाँ ये चीज हुआ है क्यों, और वो आपको पेबल होगा. अल्टीमेटली आई एम ऑफ ओपिनियन कि इतना सब कुछ होने के बाद भी ऐसा मत सोचो कि आप कुछ भी चीज का कैसे मर्जी बिल दे दो. आपके जितने भी बिल जाएंगे दे आर सब्जेक्ट टू स्क्रूटनी, दे आर सब्जेक्ट टू ऑडिट आल्सो. सो बेस्ड ऑन दैट आपको ये गाइडलाइन मिलेगी कि कितना आपको पे करना है. Right, sir. And I also request all the participants, we are getting several questions on NABH. So what we will do is we will have another session and we will. Dr. Piyush, my this lecture was just a basic and it was Right, just sir. an introductory lecture. Right, sir. Can we plan sometime later on कि एक NABH पे भी एक अलग से करें? करते हैं सर. Actually we are in discussion with a couple of Hello? more people from NABH also, so we will have you as a speaker and we will request somebody from QCI also to join, so that we can have a collective discussion and a panel, so that all the doctors will be benefited. Oh yes, agree. So I request all the doctors I request all the doctors, and allow me, I will be skipping the questions related to NABH in this session because it's a basic, as Dr. Chabda mentioned. It's a first session today. Dr. Chabda, another question is, Dr. Yogesh is asking, as far as the OPD procedures are concerned, what is the criteria of reimbursement? OPD charges are not payable. OPD charges are payable in post-hospitalization or in pre-hospitalization phase, not during the, if a patient is coming to you just for OPD consultation and they are taking bill from you and उसको reimburse हो जाएगा. हाँ, उसकी policy, उसकी अपने office की क्या है, उस पर भी depend करता है. उसके office में हो सकता है criteria उसको मिल सकता है. Like we have different policy in Delhi, DDA में different है, NHPC में जाओ तो different है, एयरपोर्ट अथॉरिटी में जाओ डिफरेंट है. सो उनके अपने ऑफिस के क्राइटेरिया उस हिसाब से आपको रिइंबर्स मिलेगा. बट मेडिक्लेम का पार्ट नहीं है वो मेडिक्लेम का पार्ट नहीं है. Right, sir. The next question from Dr. Jyoti is, reimbursement money amount will be paid by company in short span of time or it takes too long? I think she wants to say that if we have submitted, in how many, like maybe weeks or months we can expect? My friend want to know ki, how much time it is going to take to process the claim, so that the claim amount is directly, we should get a claim amount directly. This is what Right. I can interpret. Right, sir. See, it all depends upon, that is why if you go back to my summary slide, I told you to choose a company and the policy and the TPA after doing thorough research. You should not go like this कि arbitrarily किसी भी कंपनी का ले लिया चलता है, ऐसा नहीं होता. आप रिसर्च करो, आप देखो कि आपको क्या चीज चाहिए, आपके क्या क्या प्री एग्जिस्टिंग डिसऑर्डर्स हैं, और टीपीए का ट्रैक रिकॉर्ड क्या है, वो कितनी जल्दी क्लेम सेटल करता है. कुछ टीपीए बड़े लेजी हैं, वो सेटल ही नहीं करते 6 महीने साल, और कुछ टीपीए ऐसे हैं कि आप आज सबमिट करो डॉक्यूमेंट एंड यू गेट योर चेक विद इन फोर्टनाइट. So you have to do your research work. It depends from TPA to TPA. Right, sir. Thank you so much. The next question is, one doctor is saying that if suppose I am an Ayurvedic doctor and if I give an allopathic treatment, as in some states, some Ayurvedic doctors are also officially allowed to give allopathic treatments as a basic primary level as well. So then it will be payable or not? Obviously. See, your state government who is directly controlling you, because health is a state subject. If your state government is allowing you to dispense or to do that practice, then obviously if claim related to that goes to the insurance company, that's payable. Right. So I think another set of queries we have regarding NABH, which I request all of you to please hold your queries. We will shortly announce the NABH session. And again, we thank Dr. Rajesh Chabda today to invest his time into this fruitful talk. And I think we are already over time. And I again thank all the doctors also to joining us for the today's session.
We will be definitely uploading the entire session, and we will be sharing the link with all of you. So you can always refer to the session taken by Dr. Rajesh Chabra, and you can also refer to your seniors, juniors, and friends as well. And we will request Dr. Rajesh Chabra to have more sessions. Maybe we can choose specific topics in future, so that more clarity and more insight will be given by Dr. Rajesh to all of us. And with his experience, we can take it forward. And we also know that Dr. Rajesh Chabra is an expert in various parasurgical procedures like Agnikam, Jaloka, and all. However, these procedures are meant to be learned at a particular center only. Still, we request him to have some general discussion or general talks regarding to those topics as well in future. Again, thank you so much, Dr. Rajesh Chabra, for your time today. Definitely, Dr. Piyush, my pleasure. As and when you call, you are going to call me, I will be there. Thank you very much. And Thank I you so much. want my fellow colleagues to learn all these things. Thank you, sir. Thank you Thank so you. much. It was a very Okay. insightful session today. Thank you, sir. Thank Thank you. you, all Thank you. the Thank you. doctors. Okay. Okay.